In 2-3 minutes, I'll announce the results. तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताते हुए ना बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर मैं 80 एंड अबव मार्क्स देखूंगा तो उसके अंदर लोग टीवी से भी हैं, आईबीसी इंसॉल्वेंसी से भी हैं, डेट से भी हैं, गवर्नमेंट एडवाइजरी से भी है, क्रेडिट मॉनिटरिंग से भी है और वैल्यूएशन से भी है. So this is very heartening to me that it is across the board people have performed well. That is a very good thing. Now coming to top 3 divisions. So on number 3 we have government advisory with an average score of 66.50. And on number 2 we have debt with an average score of 71. And on top position, I guess it was quite obvious the valuation division is at top position with average score of 78. So I'm very happy that they have not let me down. Very good, sir. But I'm very happy that other divisions have performed extremely well. And top 3 position में valuation का कोई भी नहीं है. Wow. This is something amazing. और third position पे we have Manish Joshi. Very good, sir. He has been a consistent performer throughout all the training sessions that we have conducted. And on number 2 we have Arpita Gupta. I remember she did well in the last exam also. I'm very happy for her the way she is coming up these days. Can anyone guess who's at the top position? Let's see who are the favorites first. In the chat box, somebody can write. म्यूट करके बात कर लेना प्लीज यार. म्यूट कर फोन में, उसमें जूम में म्यूट कर दे. टॉप पोजीशन का कोई गेस नहीं कर रहा भाई. टॉप पोजीशन का गेस करो ना. पवन लोहिया. सुदर्शन. ओके, पवन लोहिया. We have a new winner this time. पहले दोनों एग्जाम में नहीं था वो. And he has scored staggering 96. Wait. Oh, I used he. That's so bad of me. So you have a hint that he is a male, right? So he is from Mumbai office. Sonal ma'am guessed very correctly. It is Ashish Gupta. Yes, yes. Ashish, you are here? Hello? Yes, Ashish is. I think Ashish is there. Yeah, I'm there, sir. I'm there. Congratulations, Ashish. Congratulations, I'm very happy. Ashish. Thank you, sir. I have heard good things about you. And you have proved all those people right. All thanks to your training, sir. नहीं मेरी ट्रेनिंग तो सभी को थी. ऐसा नहीं है. बहुत अच्छा डिस्कशन था और खाली मेरी ट्रेनिंग क्या सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने मिलकर सीखा था. So I am very happy the way things are folding up. तो ज्योति भैया आज का स्टार्ट कर देते हैं फिर. उनका शायद आज कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रहा. So today we will learn about a little bit about government advisory division of ours, just to get some idea. हालांकि बहुत vast है, but still we'll try to cover one or two topics. So I think we'll concentrate today on PPP projects because वो हमारा थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे हमारा presence है और हमारा थोड़ा specialty है उधर. So we'll cover PPP.
So if somebody can tell me what is PPP? तो आज जो हम कवर करेंगे, we'll cover के what is PPP and what is the life cycle of a PPP project, what are the different activities that are being conducted typically in a PPP project, so that everybody understand what exactly the government advisory division is doing. हम केवल बात करते हैं हमने ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ बिड कर दिया, उधर कर दिया, बट एग्जैक्टली हम लोग करते क्या हैं, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे. तो अगर कोई मुझे बताना चाहेगा पीपीपी क्या है, मतलब बियॉन्ड योर गवर्नमेंट एडवाइजरी डिवीजन पीपल. Sir, it's a project where a public and private partnership is carried out. The project where a public sector undertaking as well as a private undertaking takes part into development of any project or scheme. ठीक है जी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई है, ये तो हो गई है. तो क्यों करते हैं? जी सर, सॉरी. व्हाई वी डू? Pardon me, sir. व्हाई वी डू? Sir, because PPP की जरूरत क्या है? because in some cases the private developer cannot take that much risk, and the public does not have the government does not have the equity or the investment capability to carry out, and to bring in the efficiency of the private and entrepreneur, that is very key to any public PPP project. ओके, तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट वाला एफिशिएंसी लेके आता है, और क्या लेके आता है? इन्वेस्टमेंट लेके आता है सर, मैनेजमेंट स्किल्स लेकर आता है अपनी. ओके ओके, मैनेजमेंट स्किल्स. जी सर. और सर मतलब रिस्क शेयर करता है, पूरा रिस्क नहीं ले रहा होता है, रिस्क शेयर करता है, जिससे कि दोनों के लिए रिस्क थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहा होता है. करेक्ट है. तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसीलिए होती है ताकि बेटर इन्वेस्टमेंट आए, बेटर एफिशिएंसी आए सिस्टम में, बेटर मैनेजमेंट स्किल्स आए, जिससे कि जो आउटपुट है वो बेटर हो. तो इट्स एन अरेंजमेंट बिटवीन पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट पार्टनर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है तो वी कैन यूज लूजली इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी ऑफ एनी सर्विस, एंड उसमें रिस्क शेयरिंग और रिवार्ड शेयरिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से ही होती है. सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ पीपीपी लाइफ साइकिल? we'll discuss those things. So very first step in a PPP project is project preparation stage. It involves identifying the need of a project. इस project की need क्या है? We'll discuss these things in slight detail. Then it follows development stage, where project feasibility, project structuring, bid documentation, and process management happens. इसके बाद they identify a private partner, then private partner is made responsible for the number 1 construction, then number 2 operation and maintenance of the project. Is it the end, or there is something else also? Then obviously this project is handed over back to the government. That concludes the total life cycle. So what are the different stakeholders in a typical PPP project? कोई बताएगा कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं? So different stakeholders are like the public entity itself, which has envisaged the project,
like government department, government sponsored boards, societies, municipal corporations, public sector undertaking, state level undertaking, state authorities, like these. Then we have a private partner, which could be, termed as a concessionaire also sometimes. Then we have, sometimes we have special purpose vehicle, which is formed to conduct to give the delivery to the project. एसपीवी की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई बता सकता है? या एसपीवी क्यों है? Keep the project separate from developers' normal business and to करेक्ट है. To regain the control over the project in a much more efficient and effective way in terms of event of default. ओके. बेसिकली हमने एक काम देना था किसी को, मान लो सड़क बनवानी है, अब उसमें 2 या 3 लोग इकट्ठे होके आ गए, तो एक तो एसपीवी होने से सिंगल लीगल एंटिटी हो गई जिसके साथ लीगल कोर्स ऑफ एक्शन आप ले सकते हो. तो एसपीवी इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि कल को लीगली बाइंडिंग हम कर पाए उस प्रोजेक्ट के डिलीवरी को. और अखिलेश ने क्या बोला था कि उसको मेन बिजनेस से अलग करने के लिए इट इज गुड फॉर द प्राइवेट एंटिटी ऑल्सो. कि रिसर्जेंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए कर, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो रिस्क जो है मेरा, वो मैंने एक एसपीवी बनाई तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा रिस्क मेरा एसपीवी में चला गया, वो पूरी एंटिटी में नहीं आया मेरा. तो रिस्क शेयरिंग भी इससे होती है. Then other stakeholder is the transaction advisors, जो कि हम लोग करते हैं काम. Then we have bankers, lenders, उनको आप लोग जानते हैं. Then we have independent engineers, जो मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को. Maybe legal consultants we have, टेक्निकल कंसल्टेंट्स. कुछ मिस किया है? कोई बताना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है? यूजर अपने रोड के प्रोजेक्ट्स करवाए होंगे, अल्टीमेटली हम ही जाके टोल देते हैं उधर. अब हम बात करते हैं कि हाउ दीज, व्हाट आर द बेसिक पीपीपी मॉडल्स विच आर प्रिवेलेंट. बेसिक वी आर टॉकिंग. वैसे तो अगर पीपीपी मॉडल्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ पीपी की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं. कोई बताना चाहेगा व्हाट आर द बेसिक पीपीपी मॉडल्स? सुनील जी म्यूट है. बूट एक मॉडल है जैसा बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर. ओके. ठीक है. हैम मॉडल है, हैम हाइब्रिड एनालिटिक मॉडल. बीओटी, डीबीएफओटी, बीडब्ल्यूओटी. ठीक है. और बीडब्ल्यूओ, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं वैसे. लीज्ड. करेक्ट, लीज. सो एक हमने बात करी बॉट की, जिसके अंदर सारे डीबी फॉर्ट और बूट और बूस्ट और फलाना ढेम का, डिपेंडिंग ऑन द लाइफ साइकिल में कौन रिस्क कहां रिस्क ले रहा है, उसके ऊपर ये सारे मॉडल हैं. बनने को तो 20-25 बन जाएंगे, पर अभी हमने 2 ही कैटेगरी की बात करी है, एक लीज की और एक बॉट की. करेक्ट जी सर. एक और कैटेगरी है हाइब्रिड. यार वो ठीक है, हाइब्रिड तो कॉन्ट्रैक्ट. तो देयर आर 3 कैटेगरी. एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक बॉट हो गया.
मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जैसे किसी होटल को बेसिकली O&M है, 99% तो O&M प्रोजेक्ट ही होते हैं जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, somebody want? Okay. Sorry sir, by mistake. I'm so अच्छा, नो sorry. इश्यूज। अरे नहीं नहीं, बाय मिस्टेक क्या, आप बोलिए ना मैडम, नहीं हमें सर, भी अच्छा गलती से। लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं सर। तो these are the 3 basic types। अब सर अभी हमने सर हेलो, सुनील सर सॉरी एक पूछा था, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कहा OEM होते हैं? O&M बोला था मैंने, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ओके, जनरली स्पीकिंग। ओके ओके। जैसे कोई होटल है गवर्नमेंट का, वो जैसे अशोका होटल है, कौन सा ITC को दे रखा है, वो मौर्य गवर्नमेंट का होटल है, वो एयरपोर्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे सेंटूर होटल पे। करेक्ट, तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे हमने किसी को दे दिया। ओके। Revenue sharing models are different, but basic concept are 3 kinds of lease, management contract and bought। अब हम बात कर रहे थे स्टेजेस की, PPP की। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन स्टेज। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमने किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी ने बैठ के सोचा कि यार ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो then there is an expression of need why this project is needed। so there is a need analysis which is being done, then there are option analysis which is being done by the government authority itself, and they do a pre-feasibility themselves also, ये on the face of it viable है या नहीं है। फिर जब प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है, then they do एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल बनाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या कोई टीम बनाते हैं जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है, कंसल्टेंट्स हायर किए जाते हैं और प्रिलिमिनरी अप्रूवल लिए जाते हैं। उसके बाद आती है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टेज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। तो कोई बताएगा किस किस टाइप की फिजिबिलिटी देखी जाती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटीज व्हिच आर देयर, व्हिच आर चेक्ड बिफोर टेकिंग अ डिसीजन वेदर टू मूव फॉरवर्ड और नॉट? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी। लिखेगा? एक मिनट, मैं ही लिख लूं क्या? चलिए मैं लिखता हूं, एक मिनट। सुदर्शन जी ने बताया टेक्निकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, कमर्शियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, लीगल। लीगल पढ़ क्या है भाई? अरे आप तो सारी टर्म्स ही बता बता। हाँ ठीक कह रहा है, कुछ कुछ ठीक है। हाँ, लीगल और दिमाग नहीं चल रहा। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? सर मेरे हिसाब से तो 2 ही इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ One is the financial impact. At the end of the day, project should be feasible हाँ in terms of money. Second, हाँ। social impact assessment. कौन सा? Social impact. ओके ठीक है। Other than that, everything else can be done. I mean, technical तो सर इंजीनियर लगाना है, काम हमेशा हो ही सकता है, उसमें feasibility तो करानी है, but the ultimate goal is financial return of the project. अल्टीमेट गोल इज फाइनेंशियल रिटर्न। Plus PPP social- पर अल्टीमेट नहीं होता गोल, वो Social impact, I mean, that is their second point. इसीलिए वो सोशल इम्पैक्ट इज बेसिकली और इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक बेसिकली जो आपका फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, उसमें सोशल इम्पैक्ट कवर होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट टू द कंट्री शुड बी मोर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट। तो फाइनेंशियल बेनिफिट और फाइनेंशियल कॉस्ट से ऊपर होता है इकोनॉमिक बेनिफिट और इकोनॉमिक कॉस्ट। और सुदर्शन बाबू ने सारे ठीक ही बताए हैं, ठीक है ना? अरे क्या बात है भैया, थैंक यू। सारे ठीक ही बताए हैं। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा कवर करता हूं। First, ठीक, construction period, phasing, manpower requirement. करेक्ट। तो बेसिकली हमें
डिसाइड क्या करना होता है कि ये टेक्निकली डुएबल है या नहीं है, और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव इंजीनियरिंग या डिजाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उससे एसोसिएटेड कॉस्ट्स क्या है, जैसे इसने अखिलेश ने बताया. देन वी डिसाइड ऑन ऑप्टिमम डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, मिनिमम सर्विस लेवल्स, ये सब हम डिसाइड करते हैं. देन वी सी कि हाँ भाई टेक्निकली तो ये पॉसिबल है ये चीज. मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी है तो हाँ टेक्निकली बन सकते हैं 15 फ्लोर या 10 फ्लोर, तो ये टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाता है. इसके बाद आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. चलिए ये तो मेरे ख्याल से सबके लिए आसान होना चाहिए, करेक्ट? तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में क्या देखते हैं? सर सबसे पहला तो आई गेस यू नीड टू डिफाइन द कंसेशन पीरियड. कंसेशन पीरियड, करेक्ट, क्योंकि सर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी you have to set a benchmark, right? Okay. From government's perspective, if they are expecting 15% return or 20% return, so basis that return, what should be the optimum concession period for a particular project? Okay. Period. ये पीरियड कैसे निकालोगे अखिलेश आप? सर 10 साल होना चाहिए, 15 साल होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए, कैसे बताओगे? सर एक चीज तो फिक्स करनी पड़ेगी ना आपको. I mean, return, either you have to keep a benchmark, I need 15% return or I need 20% return. Okay. Sir, it is based on the life of the assets. A very important thing is if the life of the asset is the basically either by IRR method or by payback period method. Very good. दो मेथड के तहत फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कैन बी कैलकुलेट. करेक्ट. तो फाइनेंशियल रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कि फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या है. तो आईआरआर और पेबैक मेरे ख्याल है सब लोगों को मालूम ही है, उसके अंदर जाने की जरूरत है या नहीं है मुझे नहीं पता. तो बेसिकली व्हाट वी सी इज द प्रोजेक्ट रिटर्न्स आर अट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट और नॉट. तो जो पीरियड की बात है वो भी इससे निकल के आ सकती है कि हो सकता है 10 साल में फिजिबल ना हो कोई प्रोजेक्ट, लेकिन 15 साल होने से वो फिजिबल हो जाए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो पीरियड कुड बी वन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द फाइनेंशियल मॉडल. एंड देन जैसे सुनील जी ने बोला लाइफ ऑफ द एसेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अब फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है वो निकल के आएगा, देखते हैं. मतलब वेदर इट इज की बात कर रही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी. Return on investment and return on equity both are important, but primarily return on equity होता है. Primarily return on promoter को तो return on equity चाहिए होता है. अगर उसको ठीक से रिटर्न नहीं होगा 12-14% का तो कोई फायदा नहीं है. जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में 12 या 14% का बेंचमार्क लेके चलते हैं कि अगर उतना आईआरआर उसकी इक्विटी पे आ रहा है तो हमें बिड मिल जाएगा. अखिलेश ऐसे ही होता है? करेक्ट है. ठीक है. तो अब इस फाइनेंशियल मॉडल के बेस पे ही ये डिसाइड होगा कि गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू मिलने वाला है. कि गवर्नमेंट बोलती है कि मुझे लगता है 14% पे बिड होगा. अब 14% से एक्सेस का जो रिटर्न होगा ऑब्वियसली वो तो गवर्नमेंट को मिल ही जाएगा. अब ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न 8% है तो उसका क्या किया जाए? व्हाट शुड बी डन व्हेन देयर इज अ 8% रिटर्न? Funding. The government induces fund in form of annuity or grant. करेक्ट. तो वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी ग्रांट और एन्युटी कुछ भी देके उसको 14% का रिटर्न, 12% का व्हाटएवर वो बनाया जाए. लेकिन ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? गले की हड्डी. सोशल नीड. करेक्ट. तो जो हमने बात करी थी इकोनॉमिक वायबिलिटी की, वो सब. तो जनरली
अखिलेश बताना चाहे, या अखिलेश छोड़िए कोई और बताना चाहे, जैसे अब फाइनेंशियल मॉडल बनना है, अब तो अखिलेश ने तो बनाया हुआ है तो वो तो बता देगा शायद। कोई और बताना चाहेगा कि जब फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो बेसिक एजम्पशंस क्या होती हैं? डेट के लिए बनाते हो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। assumptions for which industry? अरे मेरे भाई, एक जनरल हम बात कर रहे हैं तो जनरल आंसर दे दे। कि assumptions क्या होंगे? assumptions मतलब revenue metrics बनेगा उसमें। करेक्ट है, रेवेन्यू एजम्पशन हो गए, cost assumption हो गया, कॉस्ट एजम्पशन हो गया। ऑक्यूपेंसी का रहेगा सर, या ट्रैफिक मूवमेंट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो। अच्छा ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक होके बताया विनीत जी ने, बहुत अच्छा। सर बोथ कॉस्ट आएंगे इसमें, मतलब नॉट ओनली कैपिटल कॉस्ट एंड एज वेल एज द रेवेन्यू ओवरएम कॉस्ट दोनों तरह कवर हो जाएंगे। वेरी गुड। कॉस्ट में हमने क्या कौन कौन सी कॉस्ट लेनी है? अच्छा सुनील जी बताइए। चलिए सर, सबसे पहले मेरी कैपिटल कॉस्ट मेरे को देखनी है कि क्या कैपिटल कॉस्ट रहेगी टू द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई। देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज O&M कॉस्ट। वेरी गुड। overall the life cycle I will to incur that. Then there will be a financial cost because I will be taking some loans, so that there will be some financial cost. उसको अलग करते हैं कॉस्ट से अभी। हाँ, कॉस्ट को यदि हम फाइनेंशियल कॉस्ट को अलग करते हैं तो बेसिकली से दिस, एंड देन if I have to pay some portion of my revenues to the government, that is a cost to me. नहीं, वो इसके अंदर, वो इसमें नहीं आती है, वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट मॉडल बनता है। गवर्नमेंट को कितना देना है नहीं कितना देना है वो तो बिड पैरामीटर होता है, उस पे हम आएंगे। we'll come to the bid parameter also, we'll discuss what are the various bid parameters. ये बेसिकली इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाया जाता है उसकी वायबिलिटी चेक करने के लिए, तो उसमें किसको क्या देना है नहीं होता। सर इसमें कंटिंजेंसी के रिगार्डिंग कुछ होता है क्या? हो सकता है, yes, there is a possibility. The contingency will always be there for your construction cost. Okay. It is always there. Contingency and inflation. ये पीपीपी मॉडल में अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करता है क्या? जो प्राइवेट, करेक्ट है। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज करेगा? बीओटी प्रोजेक्ट हुआ तब भी करेगा। डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेगा ही करेगा, पर उसका कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, ये सुदर्शन मेरे से बेहतर तू बता सकता है। कैश फ्लो में तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, बस तो फिर मगर मैं कैश फ्लो पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम मोर एम्फेसिस इज देयर ऑन कैश फ्लो। सर कैश फ्लो पे, सर कैश फ्लो पे इम्पैक्ट थोड़ा सा आएगा बिकॉज ऑफ द टैक्स। वेरी गुड, excellent, I wanted to hear this. So next assumption is the tax assumption. इंटरेस्ट का भी रह गया सर। हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट भी रह गया सर अगर डेट का। yes, we are coming to that. ठीक है, टैक्स से पहले हमारे को फाइनेंसिंग assumption पे आना था कि what is the source of finance, cost of debt क्या है, करेक्ट जी। तो रेवेन्यू assumption, cost assumption, financing assumption, tax assumption, then there are certain general assumptions also. ठीक है, कवर हो गया। सब लोग फाइनेंशियल मॉडल के एक्सपर्ट हैं, ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कुछ सिखाने लायक नहीं था, मैं ही सीख रहा था, एक बार पॉजिटिव कर रहा था। चलिए ये बताइए, प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल कब होता है? या सुदर्शन जी बताएं, या सुनील जी बताएं, या विनीत जी, कोई भी बताए, मतलब इनके अलावा भी। बैंकेबल कब होता है? फाइनेंशियली वायबल या बैंकेबल, कुछ भी बताना चाहें, 2-3 पैरामीटर। जब रेशियो एनालिसिस करना होता है उसका, वो रेशियो उसके जो बेंचमार्क होते हैं वो बेंचमार्क को मीट हो जाए। जैसे एक आधा कोई बेंचमार्क बता दे। जैसे एक डीएससीआर ले लो। डीएससीआर, चलिए वेरी गुड, तो मैंने लिख लिया डीएससीआर। हाँ चलिए, जब ठीक होता है तभी लिखता हूँ। नेक्स्ट, इक्विटी आईआरआर। इक्विटी आईआरआर, वेरी गुड। इक्विटी आईआरआर, वेरी गुड। और डेवलपमेंट पीरियड है, डेवलपमेंट पीरियड, पेबैक पीरियड ले लो। ठीक है, चलिए। कंसेशन पीरियड, आई मीन नॉट डेवलपमेंट पीरियड, कंसेशन पीरियड। पीरियड से क्या मतलब? फाइनेंशियल वायबल कैसे पता है, मतलब उस पे क्या डिसीजन है तेरा? मतलब मैं समझा नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा है। रोड प्रोजेक्ट सर, रोड प्रोजेक्ट 101 टाइम्स वायबल हो सकता है अगर आप उसे कंसेशन पीरियड बढ़ा दो तो। यार ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ मतलब ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सब फ्रीज हो गया भाई, अब मॉडल बन गया। लाइफ ऑफ एसेट भी देख लिया
और वायबिलिटी के हिसाब से जो भी हमने उसका पीरियड करना था वो कर दिया। अब हमारा मॉडल बन के तैयार है, अब तुम्हारे पास आउटपुट है, तो कौन सी 2-3 चीजें हैं जिसे देख के तुम बताओगे भैया वायबल है? Sir, equity IRR is definitely important, but project IRR is also important. Project IRR is also important. Asset coverage ratio. वो किस लिए? सिक्योरिटी के लिए सर। अरे नहीं, वहां नहीं जा रहे यार अभी। सर एनपीवी रहेगा इसमें। हाँ एनपीवी ओके एनपीवी। चलिए, तो मेरे सामने चीजें आई, डीएससीआर आई, एनपीवी आई, इक्विटी आईआरआर आया और आपका प्रोजेक्ट आईआरआर आया और पे बैक आया। करेक्ट है? पे बैक को मैं आईआरआर के अंदर ही डाल देता हूँ, क्योंकि आईआरआर ही पे बैक को डिफाइन करता है। ज्यादा आईआरआर होगा पे बैक छोटा होगा, कम आईआरआर होगा पे बैक बड़ा होगा, तो आई थिंक इंटरचेंजेबल यूज हो सकता है। तो सबसे पहले तो वायबिलिटी के लिए क्या जरूरी है? इट शुड मीट द डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस, जो सुदर्शन जी ने बताया हमें डीएससीआर वाली बात। फिर सेकंड है जो प्रोजेक्ट एनपीवी है और जो इक्विटी एनपीवी है वो एटलीस्ट पॉजिटिव तो हो, वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है। Then the most important thing is that which is relating to equity IRR. What is that? That it should be more than the minimum benchmark. जैसे अभी 14% या 12% की हम बात कर रहे थे, राइट? तो my equity IRR should be more than my cost of equity. तभी वो वायबल होगा प्राइवेट वाले के लिए। करेक्ट है? अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? अगर इक्विटी आईआरआर इक्विटी से ज्यादा नहीं होगा, वायबिलिटी गैप फंड, वीजीएफ हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सुदर्शन जी, टेक्निकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, अब रहता है वहां पर लीगल। चलिए लीगल पे आते हैं। लीगल में सुदर्शन बताना चाहेगा कुछ? कोई और बताना चाहे? सुदर्शन जरूरी नहीं है। क्या भैया, क्या क्वेश्चन क्या है? लीगल की बात कर रही थी तुमने, लीगल फिजिबिलिटी का भी ज्ञान दिया था। हाँ, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता है? लीगल फिजिबिलिटी में मतलब ये देखना पड़ेगा भैया कि जैसे माने इन टर्म्स ऑफ इवेंट ऑफ डिफॉल्ट हाउ माने व्हाट माने जो कंसेशनर है वो हाउ स्मूथली ही कैन टेक ओवर द एसेट विदाउट एनी लीगल हैसल्स। कंसेशनर डिफॉल्ट करेगा और कंसेशनर ही ले लेगा। जो देता है, जो देगा काम, जैसे एनएचआई हो गया, एनएचआई अगर काम दे रहा है तो अगर इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट हाउ ही कैन हैव अ कंट्रोल ओवर द एसेट एज वेल एज द रिसीवेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके, माने विदाउट एनी हैसल्स और विदाउट एनी लीगल मतलब लीगल हैसल्स। तो वो एक स्ट्रक्चरिंग वाली चीज होती है। ठीक ठीक ठीक। सर क्लियरेंस भी आ सकते हैं लीगल में, कोई प्रोजेक्ट की क्लियरेंस। करेक्ट, क्लियरेंस भी आएगा। क्लियरेंस प्रोजेक्ट तो क्लियरेंस तो लेनी होती है। हाँ सर, बट फॉर एग्जांपल आई जस्ट शेयर कि लीगल जो आप क्लियरेंस की बात करते हैं उसमें एविएशन का जो है क्लियरेंस है द हाइट of the project, that is very important. And second, one of the legal compliance that I am just perceiving is, for example, I am trying to build a road which crosses Taj Mahal. I'm just taking an example. जी जी बिल्कुल ठीक है, बोलिए ना। If that is an and ASI may not allow, as per ASI Act, it may not be legally viable that you can cross Taj Mahal or a road over that. Very good. So legal angle has to be checked whether this, it may be technically feasible but it may not be legally viable for taking that project. करेक्ट है। तो जो सुनील जी ने बोला वो ठीक बोला, और बाकी सबने जो बोला वो भी सबने ठीक ही बोला, गलत किसी ने नहीं बोला। बट जनरली जो लीगल फिजिबिलिटी चेक होती है इस स्टेज पे, प्रिलिमिनरी स्टेज पे, वो चेक होती है कि सबसे पहले तो देखना है कि प्रोजेक्ट जो भी है वो लॉ ऑफ लैंड के परव्यू में आता है या नहीं आता, जनरल लॉज के अंदर, या फिर रीजनल लॉज भी हो सकते हैं, रीजनल लेजिस्लेशन भी हो सकता है किसी स्टेट का, वो भी देखना जरूरी है।
उसके बाद जो हम प्रोसेस करने वाले हैं, हमें देखना है कि वो बिड प्रोसेस भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड हो। फिर आपको ये देखना है कि जो पब्लिक एंटिटी उस प्रोजेक्ट को लेके आ रही है, उसके पास खुद के पास राइट भी है या नहीं है वो प्रोजेक्ट को लेके आने का या करने का, वेदर दैट एंटिटी हैज दैट लीगल राइट। लैंड का टाइटल ही नहीं है और वो उस लैंड को लीज करने चली है, तो विल दैट बी पॉसिबल? फिर सुदर्शन ने जो बोला लास्टली कि वो हम टेक ओवर कर सकते हैं, एसेट नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दैट विल अराइज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, whether those rights and obligations are legally tenable or not। जो हम कॉन्ट्रैक्ट एनविसाज कर रहे हैं, जो कंसेशन एग्रीमेंट एनविसाज कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हम डालने वाले हैं वो लीगली टेनेबल है या नहीं। रोहन, रोहन इज देयर? हाँ हूँ। एक वो कहावत है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। क्या बोलते हैं उसको? वो लीगल मैक्सिम नहीं है, छोड़ नहीं सकते। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉट, ऐसे कुछ होता है ना, इग्नोरेंशिया जुरिस। मैं बता रहा हूँ सर, तो याद अपनी भी नॉलेज बढ़ जाएगी यार। जब तक ये बताता है, तो मेरा कहने का मतलब है कि बाद में कोई भी, ना तो कोई पब्लिक एंटिटी, ना कोई प्राइवेट एंटिटी, ना कोई ट्रांजैक्शन एडवाइजर, कोई भी एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि हमें इस लॉ के बारे में पता नहीं था। तो ये डॉक्ट्राइन सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सो इग्नोरेंशिया लेगस नीनियम एक्जियोशिट। ओके, ठीक है, ये टाइप कर दिया, सब लोग पढ़ लेंगे, एग्जाम में पूछ लूंगा। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया जो पूछने वाला हूं, तो वही लोग बता पाएंगे जो इस ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, नहीं तो कोई गूगल कर लेगा। अब आते हैं हम इकोनॉमिक एनालिसिस पे, करेक्ट है? तो इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेसिकली, मैंने जैसे बोला, नेट इकोनॉमिक बेनिफिट टू द सोसाइटी। What is the bearing that project development is whole? That is very important actually. Economic benefit is very important. कई बार जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इतना बड़ा होता है, कोई एग्जांपल दे सकता है क्या? सर, एक कश्मीर में एक टनल बनाया था अभी गवर्नमेंट ने, जो घाटी को कश्मीर से कनेक्ट करता है, तो उसमें शायद फाइनेंशियल इतना वायबल नहीं है, लेकिन वो एक पार्ट को इंडिया से कनेक्ट करता है या कश्मीर से कनेक्ट करता है। करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। आपको पता है जो टोल्स अभी तो वो हो गए ना, टोल कौन से, वो स्मार्ट टैग एंड ऑल, but otherwise there were certain toll plazas जहां पे पेट्रोल का लॉस इतना ज्यादा हो रहा था जितने का टोल नहीं आ रहा था, तो वहां पे टोल लगाना इकोनॉमिक लॉस था बेसिकली। तो उसके लिए स्मार्ट टैग्स वगैरह लगाए मुझे लगता है। अब ये सब करने के बाद, एवरीथिंग सेड एंड डन, देयर इज अ लास्ट डिसीजन मेकिंग व्हिच हैज टू बी मेड। वो क्या हो सकती है बताइए? ये सब कुछ हो गया, उसके बाद भी एक लास्ट डिसीजन मेकिंग लेना है। इसमें क्या लेना है? वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। उसको मैं इकोनॉमिक में ही डाल दूंगा वैसे। ठीक है, आपकी बात सही है, गलत नहीं है, मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस करा ही जाता है। बिड पैरामीटर सर? नहीं, बिड पैरामीटर से भी पहले, उससे भी पहले लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन तो होना ही है,
भाई लैंड एक्विजिशन तो अभी दूर है यार, आप रुक किस जा यार। किस हेडिंग में बात कर रहे हैं? अभी हम कहां पर हैं? अभी तो हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग पे भी नहीं आए, है ना। अभी तो हम डिसाइड कर रहे हैं भाई ये प्रोजेक्ट जो है मेरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मैं मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूं, करेक्ट। अभी तो मैं उस स्टेज पे हूं ना, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ना है। RNR, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, उसका तो प्लान ही बनाओगे ना। अभी तो फिजिबिलिटी के पार्ट है सारे, वो तो प्लान ही बनाओगे ना, वो तो हो गया ना। वो तो अखिलेश करता भी है ये। तो सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा आप किस सेंस में बोल रहे हैं। बेसिकली इस स्टेज पे ये डिसीजन लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को हम पीपीपी में लेके जाएं भी या नहीं जाएं। प्रोजेक्ट तो वायबल है, टेक्निकली भी, फाइनेंशियली भी, लीगली भी, इकोनॉमिकली भी, लेकिन क्या इसको पीपीपी में किया जाए या पब्लिक सेक्टर एंटिटी खुद ही कर ले। इसको क्या कहते हैं अखिलेश? This is known as value for money analysis. Right, VFM. Correct? Value for money analysis. कहने का मतलब है ब्रॉडली कि इस प्रोजेक्ट को पब्लिक सेक्टर एंटिटी करने में ज्यादा बेनिफिट है या पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कराने में ज्यादा बेनिफिट है। तो ये वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। और कायदे से ये 2 बार होना चाहिए, पर हालांकि एक ही बार होता है मुझे लगता है। अखिलेश 2 बार करते हैं क्या? नहीं सर। बिड आने तो करते तो हो कई बार यार अखिलेश, समटाइम्स यू डू, कई बार यू मोड चेंज कर देते हो ना उस वजह से। मोड सर वो स्टार्टिंग में डिसीजन टाइम पे ही मोड चेंज हो जाता है, बट एक मोड एग्जीक्यूट हो जाए, बिड आ जाए, उसके बाद टोटली वायबल नहीं हो फिर मोड चेंज करते हैं, बट वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस तो नहीं होता। करेक्ट। तो वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस के 2-3 तरीके हैं करने के मुझे लगता है। एक पब्लिक सेक्टर कंपैरेटर कंपैरिजन करते हैं, उसमें बेसिकली एक हाइपोथेटिकल शैडो बिड देखते हैं कि कितने की बिड आएगी, उसके हिसाब से देखते हैं कि फिजिबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पब्लिक सेक्टर करे तो ज्यादा बेटर है या प्राइवेट सेक्टर। तो एनीवेज चलिए, ये डिसीजन हो गया, वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस कर लिया, डिसीजन हो गया कि प्राइवेट सेक्टर को देना है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग के लिए सबसे पहले हमें करना होता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस, कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है, कौन कौन से रिस्क हम मिटिगेट कर सकते हैं, कौन सी पार्टी कौन सा रिस्क ले सकती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब कौन सी पार्टी कौन सा उसी के बेस पे हम कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं, और पीपीपी के अंदर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाते हैं कि पब्लिक सेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्क एनालिसिस का हमारा आउटकम होता है। तो बेसिकली जो अप्रोच होती है रिस्क एनालिसिस की वो होती है, रिस्क आइडेंटिफाई करिए, पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कौन कौन से रिस्क आने वाले हैं वो रिस्क आइडेंटिफाई करिए, उन रिस्क को इवैल्यूएट करिए कि उसका क्या इंपैक्ट होगा, फिर उस मिटिगेशन की कोई स्ट्रेटेजी बनाइए कि उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, या कोई डिलीवरी चैनल चेंज करके। फिर उस रिस्क को एलोकेट करिए। उसके बाद आती है स्ट्रक्चरिंग, प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में हम देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। नंबर 1 इज द डिजाइन, जो हमने अभी डिस्कस किया था, देन बिल्ड,
then finance, then maintain and then operate. ठीक है अखिलेश? ठीक है, कुछ मिसिंग तो नहीं है सर? ऑपरेट पहले आएगा, मेंटेन बाद में। ऑपरेट अच्छा एंड मेंटेन। ठीक है O&M, ठीक है, सीक्वेंस गलत होगा। तो डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड मेंटेन। नहीं, मेंटेन पहले आएगा। कैन एनीबॉडी टेल के मेंटेन पहले क्यों आएगा? सॉरी अखिलेश। There is maintenance during development also, but Very operation good. and maintenance ठीक है, simultaneously. बॉस हूं तो मैंने बोल दिया मेंटेन पहले आएगा, छोड़ना है। बिल्ड के दौरान भी मेंटेनेंस जरूरी होती है ना, जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। When we are constructing, then also maintenance is required. Otherwise, अखिलेश ठीक ही कह रहा था। So अब हम जो हमने बात करी, बॉट है, बूट है, वो सारी चीजें जो हैं इस चीज पे डिपेंड करेंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन करेगा, तो फाइनेंस कहां से मिलेगा, किसे मिलेगा, कौन डिजाइन करेगा, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, किसके पास ओनरशिप रहेगी, कितनी ड्यूरेशन रहेगी। हेलो, एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर, जो गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग पीपीपी मॉडल में डेवलप कर रही है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? अखिलेश, यू वांट टू आंसर दिस? सर ये बिल्ट ऑपरेट ओन है, आई गेस। बिल्ड ऑपरेट ओन, ऑपरेट ओन, ओन ओनरशिप भी नहीं है। नहीं सर, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसका क्या मॉडल है? हम लैंड कौन देता है उसमें? लीज स्ट्रक्चर है सर। हाँ, लीज है, वो लैंड लीज पे दे रखी है लैंड, उसके बाद ही इज फ्री टू सेल, बट उसको कंडीशंस लगा रखे हैं, राइट? लैंड की ओनरशिप दे रहे हैं ना उसको हम, तभी ना ट्रांसफर कर रहा है। करेक्ट है। तो बेसिकली तो एंड यूजर के पास जा रहा है विनीत, अफोर्डेबल हाउस जी। तो ओनरशिप हमें ट्रांसफर करनी है जी। भैया लीज लैंड में आप ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? सर उसके लिए तो फ्री होल्ड करवाना होगा ना लैंड को, अगर ट्रांसफर करवाना है तो। वो तो सब लीज कर सकते हो ना आप। नहीं, ये परपेचुअल लीज पे होता है, कौन सी वाली पे होता है ये? परपेचुअल लीज हो गई है। परपेचुअल लीज में भी आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हाँ, तभी तो लीज मॉडल बोल रहा है अखिलेश। हाँ, तो वही बोल रहा, सब लीज करोगे ना आप, ओनरशिप ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकती है। परपेचुअल लीज जो 99 इयर्स वाली उसी पे जाती है सुधीर से, शायद से उस पे। हाँ, तो वो लीज ही हो गई मॉडल। भैया क्लियर नहीं है चीज। क्लियर नहीं है? नहीं है वैसे, ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग सर एग्जांपल जैसे डीडीए बहुत जगह पे अभी पीपी तो उसका मतलब क्या कनेक्शन है? ऋषभ, आवाज नहीं आ रही आपके। सर जैसे भी डीडीए बहुत जगह पे जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी देती है, फिर वो अच्छा सुनिए, रुकिए, आई विल आंसर दैट। अफोर्डेबल हाउसिंग पीपीपी है भी कि नहीं है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक क्वेश्चन, whether affordable housing is a PPP project or not. सर एंड ऑफ द डे एंड यूजर तो एनी टाइम उसको सेल ऑफ करता ही है, मतलब तो फिर सरकार के पास ओनरशिप तो रहती नहीं है। तो पीपीपी है ही नहीं ना ये पीपीपी मतलब दिस इज डजंट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ पीपीपी। तो मतलब आप बोलना चाहते हो भैया डीडीए के जो फ्लैट्स है वो पीपीपी मॉडल में नहीं है? एब्सोल्युटली नहीं है, वो तो ट्रांसफर हो गया यार, खत्म, सरकार ने बेच दिया, नमस्ते, मोनेटाइजेशन है, दैट इज लैंड मोनेटाइजेशन। नहीं, लेकिन डीडीए का नहीं है सर। लेकिन अभी जैसे कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली हैं जिसमें प्राइवेट बिल्डर गवर्नमेंट के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं और फिर उसको सेल आउट करते हैं, तो वो मॉडल को विनीत, अगर आप मुझे लीगल स्ट्रक्चर उसका बता पाओगे ना जी, देन आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर अलग से अफोर्डेबल हाउसिंग में मेरे को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप मुझे बताओगे कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, देन वी विल बी एबल टू आंसर कि ये लीज है या मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या बॉट है, तीनों में से कौन सा है।
ठीक है ठीक। और उसकी सब कैटेगरी क्या है, देन वी कैन आंसर। मुझे लीगल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है एक्चुअली हाउ इट इज हैपनिंग। ठीक है सर। So that is why I am not able to comment on that. सर और जो एयरपोर्ट जो गवर्नमेंट दे रही है प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए, वो तो बॉट है, वो तो बहुत नहीं आएगा। हाँ बॉट है या O&M आ रहा है सर, सेम एज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट O&M। सर तेजस एक्सप्रेस गवर्नमेंट ने भी रन किया, रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन किया, तो सर वो चीज फिर क्या है? रेलवे वाला तो लीज है, अभी उसका मैकेनिज्म सेट नहीं हुआ है, बट दैट इज यूजुअली बेसिक, मतलब दे आर थिंकिंग ऑफ पुटिंग अप इट फॉर लीज फॉर 90 years। ठीक। So modalities are still to come, we are waiting for that। So we were discussing the structuring of the project। तो रिस्क कैसे एलोकेट करना है प्राइवेट में और पब्लिक में, कौन सा रिस्क प्राइवेट सेक्टर लेगा, कौन सा रिस्क पब्लिक सेक्टर लेगा, यही डिटरमिन करेगा हर चीज को, कौन सा मॉडल है, क्या नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो आप उसमें देख लो कौन रिस्क ले रहा है, नहीं ले रहा है, कैसे कर रहा है, उसके एनालिसिस के बेस पे देन वो जो अखिलेश ने बात बोली थी, प्री प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी स्टार्ट होती है, लैंड एक्विजिशन करना है और अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस लेनी है। इसके बाद हम आते हैं बिड डॉक्यूमेंटेशन स्टेज के ऊपर। जब हमने सब कर लिया, अब बिड डॉक्यूमेंटेशन स्टेज के अंदर जो हम प्रोसेस रन करते हैं, उस प्रोसेस को जो हम प्रोसेस रन करते हैं किसी प्राइवेट पार्टी को चूज करने के लिए, तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कोई बताना चाहेगा? Somebody would like to say something on that? Whether that private party has experience, technically viable, have capability and financial ability. नहीं सर, वो तो बिड डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो उसको वो बाद में कवर करेंगे, मतलब we'll surely cover that, we'll come to that sir, will eligibility और ये सब आएंगे सर उसका जी। बट बेसिक फ्रेमवर्क्स, चलिए मैं CVC का फ्रेमवर्क है जैसे ना हमारा, then he should not be a defaulter। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। चलिए मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा था, मे बी मैं ठीक से पूछ नहीं पाया। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बिडिंग होते हैं बेसिकली फेयरनेस, दैट एवरीबॉडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। कल को प्रोसेस चैलेंज नहीं होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ओके करेक्ट, दिस प्रोसेस शुड नॉट बी चैलेंज। So Akhilesh, you want to say something on these, or anybody else wants to say? Fairness, transparency, and no conflict of interest. Fairness, ये मैंने बता दिया था, आशिम ने ऐड किया ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड, ट्रांसपेरेंसी। एनीथिंग एल्स? He also said no conflict of interest। ठीक है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर यूज ऑफ प्रॉपर मीडिया, मतलब ऐसा ना हो कि आपने ऐसे ही पब्लिश कर दिया है, आपको एक प्रॉपर मीडियम लेके उसको पब्लिश एक्सीलेंट विनीत, ये ट्रांसपेरेंसी में ही आता है। अवेलेबिलिटी टेंडर की पब्लिक डोमेन के अंदर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, टेंडर पोर्टल पे, कंपनी के वेबसाइट पे, ये ट्रांसपेरेंसी है। वेरी गुड। और कुछ, और किन चीजों का ध्यान रखना? इंटीग्रिटी, सफिशिएंट टाइम फॉर बिडिंग, सफिशिएंट टाइम फॉर बिडिंग, वो फेयरनेस में आ गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, दैट विल कम अंडर दैट। सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। पता लगा आंध्र प्रदेश में बिड किया, 2 दिन के अंदर बंद कर दिया उसको, तो 2 दिन तो दिल्ली से कुरियर जाने में लगता है, करेक्ट। केवल उसकी बिल्डिंग में नीचे जो काम कर रहा, जो ऑफिस खुला था, उसने जमा करा पाया खाली वही। minimum number of bids, minimum number of bid competition, right, that correct है। फिर इंटीग्रिटी की बात है, अनबायस्ड बिड इवैल्यूएशन करना होता है, उसके लिए कमेटी बनती है, सील्ड बिड आते हैं, वो सब चीजें होती हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रेल रखनी होती है पूरे प्रोसेस की,
फिर ये जो भी सीवीसी गाइडलाइंस है, प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस है, उन सबको पूरा करना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए, और पूरा प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको 200-400 रुपए की चीज खरीदनी है और आप ईटी में ऐड दे रहे हैं, तो वो तो कोई बात नहीं बनेगा कि भैया मैं तो सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहता था इसलिए मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में ऐड दे दिया। तो कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए वी हैव टू रन द प्रोसेस। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। व्हाट आर द बिड डॉक्यूमेंट्स? तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं टिपिकली? एक आरएफपी, ओके, चलिए, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अखिलेश, हाँ जी, 2 मिनट तो रुक जा यार, है ना? सही में वो फायदा नहीं है ना यार, मतलब तू तो बता ही देगा यार, सारे बता देगा। मैंने जितने लिख के रखे होंगे शायद उससे 2 फालतू बता दे तू, तो उससे पूछूंगा ना जो कम बताए। बताओ। NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, NIT, RFP। अरे यार तू भी आशिम गवर्नमेंट एडवाइजरी से है। और कोई डिपार्टमेंट? खाली इंसॉल्वेंसी के लोग आ रखे हैं क्या यहाँ पे? मेरे को भी वही लग रहा है भैया। या इंसॉल्वेंसी वालों ने ठेका ले रखा है हर ट्रेनिंग के अंदर वो मेरी मदद करेंगे, मेरे मददगार होंगे। मैं नाम लेके पूछना शुरू कर दूंगा। भैया कोलकाता में तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कोलकाता और जो है क्या? MOQ for the price bid. MOQ? BOQ, sorry, BOQ. मैंने सोचा भाई ये क्या MOQ कोई नई चीज लेके आया। कौन था ये? बोल। नितिन? Right sir. चलो गुड यार, एटलीस्ट वी हैव अ न्यू पर्सन एंड वेरी गुड। BOQ। और कोई? सर पीपीपी में BOQ नहीं होता सर। अरे यार ठीक है, करवा लेंगे। 2 मिनट सब्र तो कर ले यार। EPC में होता है, ठीक है, 2 मिनट सब्र कर यार, मतलब किसी ने पार्टिसिपेट किया यार। अभी तो मैं कंक्लूड करूंगा। और सर देयर विल बी कंसेशनर एग्रीमेंट, कंसेशन एग्रीमेंट, ठीक है, वेरी गुड। और सर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है कुछ फॉर्म? सर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, हाँ वो तो होती है, मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तो ठीक है, वो तो EMD भी होती है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है, वो सब बिड डॉक्यूमेंट कॉस्ट होती है, वो सब होती है। सर इसमें अलग से IM बनता है क्या या सिर्फ RF? वेरी गुड, PIM है ना? वेरी गुड विनीत, वेरी गुड। PIM लिख लेते हैं। और कोई बताना चाहेगा? नहीं सर, आप बताएं कुछ। PO FAQs भी होते हैं नॉर्मली, दे प्रोवाइड के FAQs। ठीक है, FAQ लिख लेते हैं। सर सम केसेस में RFQ भी इशू होता है। वेरी गुड, RFQ, एक्सीलेंट, न्यू थिंग। मुझे पता था आप बताएंगे, आप बताते नहीं, आपको पता है लेकिन आप चुप रहते हैं, इसलिए नाम लेके पूछा था। So we have NIT, RFQ, then we have RFP, then we have invitation to EOI maybe, which is similar to RFQ, but there are certain differences between invitation to EOI and RFQ. We may discuss. Then PIM, then draft agreements. यही होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NIT से। NIT क्या होता है? आशिम ने बताया था, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो बेसिकली इसमें क्या क्या होता है? नोटिस NIT में क्या क्या रखते हैं हम लोग? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ NIT जनरली? सर प्रोजेक्ट का थोड़ा ब्रीफ, ओके, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट, एंड साथ में सर नॉर्मली क्या होता है, डिटेल नहीं होता, उसका डिटेल बैकएंड में रख दिया जाता है, सो दैट दे आर अवेलेबल द डिटेल्ड
information memorandum or is available on the back end that can be made available to the person. So, and what are the timelines that we are planning for that project development as well as project execution as well as inviting tenders की timelines as well as project की timelines इसमें NIT में आ जाएंगी. अखिलेश प्रोजेक्ट की टाइमलाइन आती है क्या? लास्ट डेट आती है, स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट. ठीक है. सो बेसिकली इसके पार्ट्स होते हैं. मिनिमम टाइम फॉर सबमिशन ऑफ बिड, किस दिन से खुलेगा, किस दिन तक रहेगा, कहाँ पे आपको ये टेंडर डॉक्यूमेंट मिल सकता है, क्या EMD होगी, क्या बिड सिक्योरिटी होगी, और थोड़ा सा ब्रीफ जैसे आपने बताया. मोड ऑफ सबमिशन, mode of submission could be there. That may or may not be there. I'm not sure if that is the integral part of that. But किसको कांटेक्ट करना है वो जरूरी है. कॉन्टैक्टिंग अथॉरिटी और कहाँ अवेलेबल होगा वो बहुत जरूरी होता है. आप कोई भी NIT खोल के देखिए, न्यूज़पेपर में यही होता है कि ये इसका है, ये लास्ट डेट है और यहाँ अवेलेबल है. कई बार इससे ज्यादा होता भी नहीं है. ठीक है, अब करते हैं हम डिस्कस. RFQ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. RFQ इज रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन. करेक्ट जी. तो ये किस लिए यूज होता है सर? व्हाई वी डू RFQ? So basically to understand whether वो उन आदमियों को शॉर्टलिस्ट करना है जो कि क्वालिफाई करते हैं to execute this project. So that sometimes we actually have two bids, technical bid as well as financial bid. तो instead of that मैंने पहले एक RFQ ले लिया जिससे कि मैं टेक्निकली फीजिबल आदमी को शॉर्टलिस्ट करके उसके बाद उनको ही बिड डॉक्यूमेंट ऑफर करते हैं. तो RFQ is carried out to shortlist and pre-qualify the applicants, जिनसे कि हम बाद में फाइनेंशियल बिड मंगा लेंगे. ठीक है, तो एक टिपिकल प्रोसेस रहता है. सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता है, फिर एक प्री बिड मीटिंग करते हैं, फिर जरूरत होती है तो प्री बिड के रिप्लाईज देते हैं, एक अडेंडम इशू कर देते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर वो अपना क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसे इवेल्युएट करते हैं, फिर बिड्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, और जो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं वो RFP स्टेज में चले जाते हैं. तो RFP क्या होता है? RFP is basically meant for obtaining the financial offers. Sometimes RFP is a mix of technical as well as financial. RFQ RFP merge करके एक ही डॉक्यूमेंट में कर देते. We'll discuss in brief what are the one stage or two stage models for or maybe three stage models for inviting bids. जनरली RFP में क्या देते हैं, जैसे हमने PIM की बात करी तो कई बार PIM भी पार्ट होता है या कोई SIM भी यूज करते हैं कहीं, तो PIM is also given. और क्या क्या देते हैं RFP में? एक तो PIM देते हैं, मैंने बोल दिया, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर, फॉर्मेट्स, वो तो हो गया ना, RFQ में ही हो गया सर. शॉर्टलिस्ट हो गए ना अखिलेश. RFP में सर बेसिकली मोर रहेगा कि EMD का क्या टर्म्स है, EMD के किस फॉर्मेट में देनी है, परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस गारंटी की वगैरह का कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी. वैसे जनरली ये सारी चीजें RFQ में भी कवर्ड हो जाती हैं, बट यू आर राइट, यहाँ पे कितनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है वो सब ठीक है, पार्ट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं हम लोग शायद, प्राइस बिड का फॉर्मेट. प्राइस बिड का फॉर्मेट ठीक है, प्राइस बिड का फॉर्मेट एकदम सही. सर PP मॉडल में क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग होगी, आई थिंक उनका एग्जैक्ट बिड जो उनको सबमिट करनी है एज फार एज रेवेन्यू शेयरिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. और सर कंसेशन एग्रीमेंट पार्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट. वेरी गुड. तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट इज देयर. अब वो कंसेशन एग्रीमेंट होगा, लीज एग्रीमेंट होगा, मैनेजमेंट एग्रीमेंट होगा, कुछ भी हो सकता है. तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है RFP में, वरना वो लीगली बाइंडिंग हो ही नहीं सकता. तो दी सर थोड़ा सा RFP और RFQ का थोड़ा सा डिफरेंस समझाओगे? हाँ बिल्कुल. RFQ इज रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, जिसमें हम बिडर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं. उसके अंदर टेक्निकल या फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसमें फाइनेंशियल बिड नहीं होती.
RFQ में, RFQ में, और RFP में फाइनेंशियल बिड होती है। बाकी बहुत सी चीजें कॉमन हो सकते हैं। जनरली RFQ में अंदर ड्राफ्ट एग्रीमेंट भी नहीं होता, RFQ के अंदर, ठीक है, और RFQ के अंदर पिम भी नहीं होता कई बार, ओके, ब्रॉड कॉन्टर्स होते हैं खाली। ठीक है। जब RFP की बात करते हैं तो बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम देते हैं जो हम सिर्फ शॉर्टलिस्टेड बिडर्स के साथ ही शेयर करना चाहेंगे और उन्हीं के साथ शेयर करते हैं। सर मैं जरा रोहन को थोड़ा सा एक शब्दों में बताना चाहूंगा। इट इज लाइक इनविटेशन ऑफ EOI इन केस ऑफ IBC। व्हेन यू आर इनवाइटिंग इन EOI, तो क्या होता है कि आपने पहले सोच लिया कि वेदर इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 29A, वेदर ही इज एलिजिबल and whether he can perform, he should be given that the detailed. Then you actually give it that list, the provisional list of bidders. समझे ना? It's like that only. Okay, ठीक है, ठीक है। Yeah, and then once you give enlist the bidders, then you offer them the detailed EOI and the IM and all that information. Done. Exactly same run, same process. Sir, I hope I've tried to clarify to people. Yes, yes. who are एकदम from सही IT. है आपने। Thank you. एकदम सही बताया। सुधीर से जो नेटवर्थ का होता है वो RFQ का पार्ट होता है या RFP का पार्ट होता है? RFQ RFQ का ही रहेगा सर। तो क्वालिफिकेशन बैलेंस तो वही शीट्स, हो गए। हाँ, तो बैलेंस शीट्स वगैरह जो हम लेते हैं सर वो RFP के साथ लेते हैं जनरली, जो करते हैं। देखिए RFQ में आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करते हैं, जिसके अंदर आप बताते हैं कि मेरे आपकी नेटवर्थ 50 करोड़ होनी चाहिए, 10 करोड़ होने चाहिए, और उसी के लिए तब आप उनसे कागज लेते हैं। RFP में आप क्या लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप कंटिन्यूड एलिजिबिलिटी ले सकते हैं उससे, कि दैट यू आर कंटिन्यू टू बी एलिजिबल। ठीक है सर। जनरली RFP के अंदर कोई नई कंडीशंस नहीं डाली जाती है, कभी कभी डाल दी जाती है समटाइम्स। अगर आपके पास 50 RFQ में 50 पार्टिसिपेंट शॉर्टलिस्ट हो गए तो समटाइम्स उसको चेंज कर दिया जाता है, बट दैट्स नॉट अ वेरी गुड प्रोसेस टू रन, बिकॉज दैट इज अ चैलेंजेबल इन द कोर्ट कि आपने शक्ल देख के आपने चेंज कर दिया। जो प्रिंसिपल था आपका ट्रांसपेरेंसी का, वो खत्म हो जाता है। यस, कि आपने जानबूझ के मुझे बाहर करने के लिए आपने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू। तो टिपिकल जो स्टेप्स हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, कुछ चीजें कवर, कुछ रह जाएंगे तो देख लेंगे बाद में। तो स्टेप वही है जो RFQ में थे। इशू ऑफ RFP, इसमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट इज रूल्ड आउट नाउ। इशू ऑफ RFP, देन अगेन प्री प्रपोजल कॉन्फ्रेंस, इशू ऑफ एडेंडम, सबमिशन ऑफ प्रपोजल, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल, और लास्ट में डिक्लेरेशन ऑफ द प्रेफर्ड बिडर एंड इशू ऑफ लेटर ऑफ अवार्ड। अब ये बताइए बिड पैरामीटर क्या होता है? व्हाट इज द बिड पैरामीटर? नाउ बिड पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट। अखिलेश ने वर्ड यूज किया था बिड पैरामीटर थोड़ी देर पहले, तो कोई बताना चाहेगा बिड पैरामीटर क्या होता है? टेक्निकली या फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिड पैरामीटर फाइनेंशियली होता है, टेक्निकल नहीं होता क्या? टेक्निकल में तो अपना हो गया ना, एलिजिबिलिटी वगैरह वो सब हो गई। ओके, वो हो गया हमारा। बिड पैरामीटर के अंदर सुदर्शन ठीक कह रहा है, अगर QCBS होगा तो बिड पैरामीटर में टेक्निकल भी आ जाएगा, करेक्ट है। बट बिड पैरामीटर का मतलब क्या है? चलिए वही बात करते हैं। व्हाट इज बिड पैरामीटर? On what basis you will award the project? Correct. On what basis you will select the preferred bidder? कोई तो पैरामीटर बनाना पड़ेगा ना कि भैया ये मेरा प्रेफर्ड बिडर है, और वो मुझे पहले ही बताना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं लिख सकता मेरे मन में जिसको हेलो सही बात। Like in bold that जैसा अपने करते हैं कि list number of years who will take list number of years who collect the toll tax is one of the considered bid parameter। वो तो बिड पैरामीटर हो गया। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं बिड पैरामीटर क्या होता है। करेक्ट है, बिड पैरामीटर यही होता है कि जिसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रेफर्ड बिडर मैं किसको LOA दे दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है जो अभी आंसर कर रहे थे दिनेश जी, कि बिड पैरामीटर क्या हो सकता है। 2-4 एग्जांपल देने की कोशिश करिए सब लोग। किस बेस पे डिसाइड करेंगे? लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट प्रीमियम, हाईएस्ट प्रीमियम, लोएस्ट एन्युटी,
लोएस्ट एन्युटी, हाईएस्ट लीज प्रीमियम, चलो अपफ्रंट प्रीमियम अदर देन द लीज प्रीमियम। यार रुक जाना यार, और लोग भी हैं सर लोएस्ट दिनेश जी ने टाइमलाइन, बताया था, दिनेश जी ने बताया था लोएस्ट पीरियड ऑफ कंसेशन, करेक्ट। सर लोएस्ट, और सिमिलरली लोएस्ट दिस जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की, लोएस्ट सपोर्ट इफ लीज देयर इज अ सपोर्ट, सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लीज सपोर्ट, हाईएस्ट शेयर ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, जी, लोएस्ट क्वांटम ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, और बाकी अखिलेश ने बता दिया, हाईएस्ट अपफ्रंट पेमेंट बताया उसने, लोएस्ट एग्रीमेंट पीरियड ऑलरेडी बता दिया, और पीरियड तो सर आई हैवंट सीन पीरियड एज अ बिड पैरामीटर। ठीक है, मतलब वो इट इज देयर इन द थ्योरी, सो वी कैन नॉट रूल दैट आउट, वो प्रेफर्ड नहीं है ज्यादा, बट इट्स नॉट दैट कि इट इज नॉट देयर, और इट कुड नॉट बी, इट कुड बी बिड पैरामीटर, yes, it could be a bid parameter, lowest agreement period could be a bid parameter. power consumption, ये एक नया आया है, इसको सो के समझते उठा है, सो के हैं। उठा ये है। नहीं नया आया, मेरे को भी नहीं पता है, इसको समझते हैं। आशिम बताइए। हेलो, बताइए थोड़ा कुछ जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे स्टील प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में है जो आपका जब एवेल्युएशन होता है तो उस टाइम में देखा जाता है कि पावर कंजम्पशन किसका डिजाइन बेसिस पे सबसे कम है। अरे तो यार उसके वो तो ऊपर फिजिबिलिटी में आ गया ना, टेक्निकल फिजिबिलिटी में डिसाइड कर लिया। नहीं, अच्छा जब अच्छा, फाइनल ओके ओके, एवेल्युएशन में अच्छा हाँ हाँ हाँ, आपने एक प्राइस दिया और आपको एक पावर कंजम्पशन देना होता है, ओके, उसमें पावर लोडिंग फैक्टर लगा के वो लोग एवेल्युएट करते हैं उसको। बट ये पीपीपी प्रोजेक्ट नहीं होते होंगे। नहीं होते बीआईए पीपीपी नहीं होते। एनीवेज चलिए ब्रॉडली हम ये बताते हैं कि बिड पैरामीटर का मतलब होता है कि हाईएस्ट वैल्यू टू द गवर्नमेंट एंड लीस्ट वैल्यू टू द प्राइवेट प्लेयर। समराइज अगर मैं करूं कि सरकार को जो सबसे ज्यादा देगा और खुद अपने पास जो सबसे कम रखेगा, मैं उसको एलओए दे दूंगा। बट अगेन इसके अंदर जो हम जिसको बेसिकली हम लीस्ट कॉस्ट मेथड बोलते हैं, बिड पैरामीटर अलग अलग हो सकता है बट एक्चुअली इट इज अ लीस्ट कॉस्ट मेथड, दैट इज द लीस्ट कॉस्ट टू गवर्नमेंट और हाईएस्ट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। इसके अंदर एक हम करते हैं क्यूसीबीएस, बेसिकली जिसके अंदर हम कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखते हैं, जिससे कि हम क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो कोई बेटर अगर क्वालिटी दे रहा है तो उसका पैरामीटर अलग हो जाता है, जिससे कि हम जो प्रेफर्ड बिडर है उसको चूज करते हैं, वेटेज देते हैं टेक्निकल स्कोर को और फाइनेंशियल स्कोर को। Sir, what is the full form of QCBS? If you can just share, please. कोई टाइप कर दो यार। क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। कर दी सर, कर दी। ठीक, कोई पढ़ के बता रहा ये हूँ। एग्जाम में आएगी है। सर इसमें भी कोई 12th प्लेयर होता है क्या? जैसे आपका जो सक्सेसफुल बिडर है किसी भी रीजन से अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो जो भी सेकंड बिडर होता है तो उसको अलोकेट होता है या फिर दोबारा से बिड प्रोसेस रन करना होता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो विनीत ने ये पूछा है क्वेश्चन कि हमने एक तो सर ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को बिड एलओआई अगर हो गया इश्यू और काम स्टार्ट हो गया, स्कोप ऑफ वर्क अगर फिर से चेंज हो जाता है तो बिड प्रोसेस फिर से आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड, ठीक है, एक एक करके आंसर करते हैं ना। पहले विनीत ने ये पूछा था कि अगर मैंने किसी को एलओए दे दिया और उसने एलओए एक्सेप्ट नहीं किया या कर लिया, उस मतलब कर लिया सर, एक तरीके से कर भी लिया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया उसने, अपना जो भी था काम स्टार्ट करना था काम स्टार्ट नहीं कर पाया और एक तरीके से फेल हो गया वो काम करने के। आइडियल कंडीशन में वो ब्लैकलिस्ट होगा, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा और रीटेंडर होगा। ओके, और एक्सेप्ट नहीं किया है तो सर? एक्सेप्ट नहीं किया है तो
उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा और मे नॉट बी, रीटेंडर मे और मे नॉट बी देयर, L2 को दे सकते हैं उस केस में। That would be specifically, I think, covered in the RFP. Yes. EMD फॉरफिट हो जाएगा, EMD चला जाएगा। EMD फॉरफिट होगा, करेक्ट। हाँ वो तो ठीक। बट L2 को जा सकता है उसमें रीटेंडरिंग की। हाँ जी सर, नॉर्मली क्या होता है कि L2 के साथ नेगोशिएट किया जाता है टू ब्रिंग इट टू डाउन और अप टू द L1 लेवल। नॉर्मली दिस इज द प्रोसेस दैट दे आर रनिंग। दैट इज अ वेरी बैड प्रोसेस, आई वुड से। वो स्पेसिफिकली उसमें आरएफपी में मेंशन होना चाहिए ये क्लॉज, तभी हो सकता है। करेक्ट, सागर इज वेरी राइट। नील जी आपके लिए बता रहा था सर। राइट, सागर इज वेरी राइट। हमने भी सुन लिया। अच्छा यार, ये तो गड़बड़ हो गई है। ये प्राइवेट चैट में आंसर देना था। वो तो सुनील जी को बता रहा था खाली। सही है, सही है। तो सुदर्शन, आप क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा था कि आपने LOA इश्यू कर दिया, काम स्टार्ट हो गया, स्कोप ऑफ वर्क इनहैंस हो गया, तो स्कोप ऑफ वर्क इनहैंस हो गया तो उसके लिए जैसे 100 रुपए का काम था, फिर अब 150 रुपए का काम हो गया, तो अब क्या होगा? चेंज ऑफ स्कोप का सर एक क्लॉज हमेशा होता है कंसेशन। हाँ, करेक्ट। हाँ, सो अब बता अखिलेश, टू आंसर दैट। सर, चेंज ऑफ स्कोप का क्लॉज कंसेशन एग्रीमेंट में हमेशा होता है, बट देयर इज ए कैप टू इट, एट टू अप टू व्हाट पॉइंट द चेंज ऑफ स्कोप शैल बी रीइंबर्स्ड और पेड टू द कंसेशनर। वो अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो जनरली सुदर्शन, जो अच्छे बिड डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसके अंदर ये सारी चीजें एनविसाज्ड होते हैं। नहीं आप 2 मिनट मुझे पहले आंसर करने दे। हाँ 2 मिनट मुझे आंसर करने दे, उसके बाद अपन बात करें कि उसमें जनरली आंसर्ड होती है कि हम लोग अगर कोई चेंज ऑफ स्कोप होगा तो उसको कैसे डील करेंगे। कई बार उसमें मैन आवर बेसिस के ऊपर रेट अलग से मंगाए जाते हैं कि अगर चेंज ऑफ स्कोप होगा, जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि मैन आवर बेसिस के ऊपर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम आपको ये पेमेंट करेंगे। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर जो चेंज ऑफ स्कोप है वो एक डिफिकल्ट सिनेरियो है। अगर कोई एग्जांपल देना चाहता है तो मेरे से बात कर, क्योंकि अगर कोई माइनर है दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ, बट अगर कोई मेजर चेंज ऑफ स्कोप है then it is can of worms open for litigations. Sir, I have seen contracts, I can tell you even the larger contracts of particularly of power sector, where the change in scope in particular item and then overall up to 20% the rate will be same. If it is more than 20%, then a new rate will be derived based on the DSR and the market rates. Correct. And for this is applicable for individual items as well as overall contract value. Correct. So जैसा कि सुनील जी ने बोला, अखिलेश ने बोला कि जनरली चेंज ऑफ स्कोप हर चीज अच्छे डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियरली कैप्चर्ड होती है, और अगर कैप्चर नहीं हुई है तो मुश्किल तो आने वाली है, ये तो पक्की बात है। बट अगर अथॉरिटी के अंदर दम है तो वो जो आपका इनिशियल फाइनेंशियल मॉडल बना है, जो फाइनेंशियल बिड बना है, उसके बेस पे दे कैन कैलकुलेट व्हाट इज द ROI अवेलेबल टू द बिडर। उसके बेस पे दे मे डू दैट इन द बेस्ट इंटरेस्ट, क्योंकि वो टर्मिनेट भी नहीं कर सकते। समटाइम्स अ स्टेज में कम वेयर दे कैन नॉट टर्मिनेट एंड रीटेंडर। नहीं तो आज जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरे को काम नहीं मिला, दूसरों को काम मिल गया, 100 रुपए का टेंडर था और आगे जाके आप स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर दिया और 200 रुपए का काम हो गया है, तो मेरा तो हर समय प्ली ये हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मैं 200 रुपए में आप उससे जो काम करवा रहे हो आज उससे कम में मैं काम कर देता अगर उस पहले बार में अगर 200 रुपए का टेंडर अगर आप फ्लोट करते तो। करेक्ट है आपकी बात सुदर्शन। तो उसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगर वो चेंज ऑफ स्कोप मेरा इनिशियल स्टेज पे हो गया, इन अ वेरी इनिशियल स्टेज अगर चेंज ऑफ स्कोप हो गया तो मेरे को तो रीटेंडर करना ही करना है, मतलब प्रोजेक्ट डिलीवरेबल ही चेंज हो गए ना। लेकिन उसने अगर आधा काम कर दिया तो फिर अथॉरिटी के पास कॉल है, दे हैव अ राइट टू टर्मिनेट ऑल्सो
टर्मिनेट का ऑप्शन रहता है एग्रीमेंट में. दे विल टर्मिनेट, pay that money to that particular person which is available under termination clause, then re-tender it, and the new bidder will come with the new scope of work. सर एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसका चेंज ऑफ स्कोप का, यदि आप मेरे को परमिट करें. जी. शासन प्रोजेक्ट का जो बिड हुआ था उसमें जो कोल माइन एलोकेटेड थी ओरिजिनली, उसके बिड डॉक्यूमेंट में था कि द कोल माइन, द एक्स्ट्रा कोल, एडिशनल कोल व्हिच विल बी ड्रॉन will be decided by the government. And later on, Reliance, who was the bidder, L1 bidder, was permitted to use that coal in other projects, which was later on contested by the L2 bidders, this Tata Power, that this was not clear at the original time, and we bid accordingly. Correct. So it's a can of worm. I'm telling you, it's not a very easy thing, open for litigation. बट कहीं कोई लॉ नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, तो ये तो आपको अपना डिसीजन लेना, हाउ यू गो फॉर दैट. सर जैसे स्कोप ऑफ वर्क में चेंज होने की वजह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इफेक्ट होता है कि मे बी उसके पास उतना मैन पावर हो या फाइनेंशियल कैपेसिटी ना हो, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट टर्मिनेट करती है तो अगर बिडर को इकोनॉमिक लॉस होता है तो गवर्नमेंट उसको. अरे मेरे भाई विनीत, टर्मिनेशन क्लॉज लिखा होता है एग्रीमेंट में, टर्मिनेट पे क्या होगा ये लिखा होता है, क्या पेमेंट होगा, तो मतलब बिफोर हैंड पता होता है, क्लॉज होता है, बिफोर हैंड पता होता है बिडर को. भाई आरएफपी का पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट. अगर उसने ठीक से नहीं पढ़ा बिडर ने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो उसकी गलती है भाई. उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट कैन टर्मिनेट दिस प्रोजेक्ट एट एनी टाइम एंड दिस विल बी द टर्मिनेशन पेमेंट पेएबल. राइट सर, इट इज देयर. वो कोई बड़ा इशू नहीं है. बट आई एम अगेन सेइंग कि लिटिगेशन अवॉइड करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक हमारे रोहन जी बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है. बिल्कुल होता है. वो किसी भी लॉ से ऊपर है. कहीं कुछ लिखा लो, किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कुछ भी कर लो, बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कभी भी प्रिवेल, हर चीज को प्रिवेल कर सकता है वो. तो इट इज ऑलवेज देयर. अब तो सुधीर भैया, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर करते हैं, हाँ, उसकी सैनिटी कुछ होती नहीं है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी बोला. तो मांग रहे थे, ऐसा नहीं बोला सुदर्शन, मैंने ऐसा नहीं बोला. उसकी बहुत सैनिटी है. मतलब ऐसा नहीं है कि हर वक्त तुम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की प्ली लेके पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता है. वो आपको प्रूव करना पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर भी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो था वो किस वजह से गलत था, या मैंने किस वजह से साइन किया नहीं किया. मतलब देयर आर नॉट मेनी थिंग्स. दिस मे और मे नॉट बी द राइट प्लेटफॉर्म. 10:30 बज गए हैं ऑलरेडी. 6 महीने से बोला. अभी मैं और क्या कवर करना चाहता था आज. अभी तो चीजें रहती थी यार. केवल पोस्ट अवार्ड सर्विस रह गई है, उसको थोड़ा तेजी से कवर कर लेते हैं. ठीक है जी सर. पोस्ट अवार्ड का मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो क्या देने के बाद छुटकारा हो गया, कहानी खत्म हो गई? इज इट द एंड ऑफ द स्टोरी? नहीं सर, मॉनिटरिंग होनी है, मॉनिटरिंग होनी है, पेमेंट हमको आना है. पेमेंट आना, किसको आना है? जो गवर्नमेंट एंटिटी है उसको, उसके पास, उसने यदि मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग है तो वो रेवेन्यू शेयरिंग उसके पास. 3 स्टेक होल्डर हैं जी, 3 स्टेक होल्डर हैं. पब्लिक एंटिटी इस वक्त जी, अवार्ड के बाद 3 स्टेक होल्डर रह गए. अभी मैं डेटर बैंक को छोड़ देता हूं अभी 2 मिनट के लिए. बैंक का भी जरूरी है, उसकी पेमेंट टाइमली होनी चाहिए. एक तो पब्लिक एंटिटी है, एक प्राइवेट प्लेयर है जी, और तीसरा हम लोग हैं, सोशल पर्सपेक्टिव है. उसके अलावा लैंडर है चौथा. चलिए लैंडर को भी रख लेते हैं, या सुदर्शन जी नाराज हो जाएंगे. तो सर आपको सुदर्शन जी की नाराजगी बहुत ज्यादा चिंता रहती है. अरे क्या करें, सुदर्शन को नाराज करके मरना है क्या किसी ने? किसी की हिम्मत है क्या ऑर्गेनाइजेशन में? तो पब्लिक एंटिटी को क्या करना है कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट के हिसाब से कर रहा है. प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट हो रहा है
समय पे, मिनिमम सर्विस लेवल्स पे, और रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा प्राइवेट पब्लिक एंटिटी को। ठीक है। और प्राइवेट प्लेयर को क्या चिंता है, कोई बताएगा? प्राइवेट प्लेयर की चिंता कोई बताएगा? सर उसको जो काम उसको फॉर एग्जांपल कुछ काम पब्लिक एंटिटी ने करके देना था, वो कंप्लीट, उसको टाइमली कंप्लीशन मिल जाए। फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन उसको करके देना है, तो लैंड एक्विजिशन टाइम से नहीं मिलेगा तो फिर ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। सो इज टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूशन। कॉस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कि कॉस्ट उसके विद इन द कॉस्ट रहे, प्लस उसको फाइनेंस अरेंज नॉर्मली करना होता है, तो उसको फाइनेंस अरेंज करने के लिए जो भी सर उसका रिलीज ऑफ पेमेंट अथॉरिटी से, रिलीज ऑफ पेमेंट है। ब्रॉडली जो भी ऑब्लिगेशंस पब्लिक एंटिटी की हैं वो पूरी हो, प्लस उसके पास एक प्लेटफॉर्म हो जिसपे कि वो अपनी बात को रख सके, अपने इश्यूज को रख सके और वो कर सके, जो नोडल एजेंसी होती है उसके। और पब्लिक के लिए क्या जरूरी है कि वो अच्छी सड़क बन जाए या अच्छा होटल बन जाए या जो भी है, मतलब हमारे को टाइमली मिल जाए प्रॉपर सेफ गार्ड के साथ। अब पोस्ट अवार्ड के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। क्या क्या स्टेज होती हैं? पहले डेवलपमेंट जी, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर O&M और फिर हैंडओवर। तो डेवलपमेंट में क्या होता है? लैंड एक्विजिशन होती है जी, फाइनेंशियल क्लोजर होता है, उससे पहले एसपीवी फॉर्मेशन होती है, डिजाइन ड्राइंग होती है, ये सब होता है डेवलपमेंट स्टेज में। फिर कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्वालिटी मेंटेन होती है, और फिर O&M पीरियड में रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग कंस्ट्रक्शन में भी होती है वैसे, रेवेन्यू शेयरिंग होती है, ये सब चीजें। फिर हैंडओवर में सीधा हैंडओवर कर देते हैं। हैंडओवर से पहले कुछ होता है सर? फॉर एग्जांपल जो both of the parties, the taking over as well handing over parties have met their obligation up to date. Very good. If there are any obligation to be performed, they have to perform that obligation. Correct. तो इंस्पेक्शन होती है, चेक्स होते हैं और क्लियरेंस होती है। क्लियरेंस बता रहे थे आप, क्लियरेंस होती है, तो क्लियरेंस होती है। तो ये हो गया नटशेल में हमारा आज का समारोह समाप्त। अब 2-3 चीजें क्विकली, 5 नाम जो क्वेश्चन देंगे मुझे। मनी, नवनीता, सो गए HR वाले। सुनील जी आप नोट कर लीजिएगा और HR को मेल कर दीजिएगा, ठीक है? 5 नाम जल्दी बताइए। देखिए पिछली बार भी जिसने क्वेश्चन दिए थे वो फायदे में रहा था। भाई 50 क्वेश्चन में से अपना नाम तो ऑफर कर ही रहा हूँ। सुनील जी आप एक बार दे चुके हो, मैं थोड़े नए लोग चाहता हूँ। अप्रिशिएट सर, अप्रिशिएट। सभी को मिलना चाहिए मौका। नहीं, इफ देयर आर नो वेयर यहीं पे हूँ। हाँ मनी मैम है, ठीक है, आप नोट करेंगे। ठीक है, बताइए कौन कौन देगा क्वेश्चन? नहीं तो मैं नाम लेने शुरू करूंगा। लिखिए पहला नाम, अभिषेक रुंगटा। यस। और कोई नाम देगा? दूसरा लिखिए अंशिका जैन। ओके। एनीबडी एल्स? अच्छा, एक टीवी से हो गया, एक डेट से हो गया। अब IBC से कौन आएगा? मैं तो दे चुका हूँ। रोहन दे चुका है। सुनील सर भी दे चुके हैं। वो भी दे चुके हैं। ऋषभ? दिनेश जी? दोनों में से जो पहले यस करे। हेलो, अभी मैं बना दूंगा भैया। ठीक है दिनेश जी। कितने हो गए सर? 3 हो गए सर। ओके,
अब टीवी से रवि खियानी, नहीं अंशिका हो गई ना टीवी से? जी अंशिका हो गई। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अब क्या रह गया? वैल्यूएशन सर। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से कौन आएगा भाई? शमी। आतिश अग्रवाल, वेरी गुड। कितने हो गए सर? 4 हो गए सर। डेट से रह गया ना? नहीं गवर्नमेंट एडवाइजरी ना 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 वो नहीं देंगे। डेट से कौन आएगा? डेट से आ गया ना सर, अभिषेक आ गया उसमें। अरे हाँ फिर क्या रह गया? क्रेडिट एएसएम,